everyone, welcome back to my channel Acing Exam. I am Bhumika Sharma and today's topic is stanza forms. It is second unit of BA second semester of book English Poetry. तो मैंने स्टार्ट किया है अभी सोशियोलॉजी और इंग्लिश के लिए वीडियोस डालना and till your external exams are coming, I'll be uploading the explanation video with notes of each and every chapter, each and every unit of English and sociology of your BA second semester. Okay, so the link for sociology's third unit, that is the role of election commission. The link for that video is in description box, so kindly watch it if you haven't. And this is the video for English unit 2 English poetry. So without any delay, let's get started. First of all, if we are studying stanza forms, we should know what is stanza, right? So let us understand first what is stanza. So stanza is basically the group of lines in a poem. So जो पोम में हमारे ग्रुप ऑफ लाइन्स होती हैं, आपने देखा भी होगा, पोम आपने पढ़ी भी होगी एक आध, मे बी इन जूनियर क्लासेस इवन, तो उसमें हमारे स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 होता है. और हम दो स्टैंजाज को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि ये स्टैंजा 1 है और स्टैंजा 2, बीच में एक लाइन गैप होता है. बाय चेंजिंग द पैराग्राफ एंड लीविंग अ लाइन गैप, वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू स्टैंजाज. So stanza, you all know what is stanza, and it is originally derived from Italian. एक Italian word है जिस that is standing place. ठीक है, जो stare से STARE word से हमारा derive किया गया है, जिसका मतलब होता है standing place. So stanza is a group of lines in a poem. Each stanza has a set repeatable patterns of meter and rhymes. तो एक सेट होता है स्टैंजा का हर एक पोम में, ठीक है, या तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड लाइन, और या कोई पैटर्न बना होता है. सो द ग्रुप ऑफ लाइन्स विद दैट सेट पैटर्न्स एंड राइम्स, इट इज नोन एज स्टैंजा. तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर एंड लाउड. So it's one of the very interesting and easy topics of this semester, I would say. So kindly pay attention and all the stuffs written in these notes, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसके अलावा आपने कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली just go through some questions, additional questions if you want to, but the study material I am showing on my channel is more than enough. You don't need to go anywhere else for your examinations point of view. Fine. And so far BA external exams is concerned, what I am teaching, what I am explaining, it's like more than enough for your understanding basis. Fine. So you don't need to peep or waste your time here and there. Just come to my channel, watch the notes, understand my explanation, and that's it. You are all prepared for your external exams. Still you have a little bit doubt, you can go through some external questions, like, so you can go through some model question papers which comes like, let me show you, like this. These kinds of books contain some questions, some extra questions for each and every unit. You can go through it, and rest of the study material you can get on my channel easily. So alright, let's continue. So normally हमने पढ़ लिया है कि स्टैंजा डिवाइड कैसे किया जाता है दूसरे स्टैंजा से, बाय लीविंग अ ब्लैंक लाइन. फाइन. स्टैंजा इज अ ग्रुप ऑफ लाइन. अब हम एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. हमें वन लाइन में स्टैंजा को डिफाइन करना है, तो हाउ कैन वी डू दैट. सो स्टैंजा इज अ ग्रुप ऑफ लाइन्स और वर्ड्स ऑफ पोइट्री which have definite patterns. It's simple, it's very simple. Now let's come towards our main topic of the unit, which says forms of stanza. अब हमें stanza form समझने हैं कि कौन कौन से different types of stanza forms होते हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ, 4 stanza forms होते हैं: the heroic couplet, blank verse, the sepsarian stanza and the terza rima. Fine. So this is the part 1 of this unit. I will be explaining heroic couplet and the blank verse in this video, and rest one, the Spenserian stanza and terza rima, you can find it on the second part. I will be posting very soon, like maybe tomorrow.
So kindly watch both of the parts to get the better understanding of this whole unit. Alright, so coming towards heroic couplet. So basically what happens, ये जो BA आ जाता है ना जब आपका, तो it's the English of BA. I'm talking about second semester. It's all cramming. आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगाने हैं इसमें, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग आप चाहे तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग बेस रख सकते हैं, बट सो फार योर एक्सटर्नल एग्जाम्स are concerned, you have to learn, you have to have a better grab at your cramming in all these units, in all concepts, because without learning it on like tips of your fingers, you cannot write in exams, because all these things are not, ये बहुत नहीं रहेगा कि आप इसे समझ ले सिर्फ और आप एग्जाम्स में लिख दें. नॉट एट ऑल, इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल. फाइन. सो मैं आपको बता देती हूँ, हीरोइक कपलेट में आप अगर आता है तो आपको क्या क्या लिखना होगा. यू जस्ट हैव टू राइट. हीरोइक कपलेट एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, ठीक है. और ये बेसिकली जो आयम्बिक पेंटामीटर, बेसिकली जो हीरोइक थीम्स होती है ना, ये उनके ऊपर बेसिकली लिखा जाता है, ठीक है. हीरोइक कपलेट और हीरोइक थीम्स, बहुत इजी था, ठीक है. और एग्जाम्पल्स आपको ये दो याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं. आप और भी याद रख सकते हैं, बट ये दो मोर देन इनफ रहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको और याद रखने की ज़रूरत है. फाइन. तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? हियर द ग्रेट आना whom the realms obey, though sometimes counsel take and sometimes tea. So this is an extract of heroic couplet which is written by Alexander Pope, and the name of the poem was The Rape of Lock. ठीक है. तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि वो स्टैंजा क्या है, ठीक है. जैसे ये मैंने स्टैंजा लिखा हुआ है, पोम का नाम क्या है और उसके पोर्ट का नाम क्या है. वेरी सिंपल. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी होगी टू हैव अ बेटर ग्रैब एट दीज काइंड्स ऑफ यूनिट्स बेसिकली, ठीक है. तो नेक्स्ट आता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ हीरोइक कपलेट. सो मैं आपको आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट, थ्रो सम लाइट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ हीरोइक कपलेट. सो व्हाट यू गाइज नीड टू राइट देयर इन योर एग्जाम्स. सो यू जस्ट हैव टू राइट कि इसकी सिंपली राइम स्कीम याद कर लीजिए. ए वेरी सिंपल है, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है. और इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. बेसिकली इसमें 2 ही लाइन्स होती हैं एक स्टैंजा में, ठीक है. आयम्बिक पेंटामीटर पे लिखा जाता है. ये जो हीरोइक थीम्स होती हैं उन पे लिखा जाता है. ये बहुत सिंपल है. और राइमिंग लाइन्स होती है, एक पेयर होता है राइमिंग लाइन्स का, और हीरोइक पोएम में बेसिकली ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसकी थीम हीरोइज्म, और बेसिकली लार्जर पोएम्स में ये स्टैंजा हमें देखने मिलता है, ठीक है. और हीरोइक थीम्स वाली पोएम में हमें ये देखने मिलता है. ऑल राइट. सो आई होप हीरोइक कपलेट इज क्लियर. एक बार समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं हीरोइक कपलेट की. तो इसे हीरोइक कपलेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो 10 सिलेबल एम्बिक वर्ड्स होते हैं ना, वो चाहे राइम करें या ना करें, वो बेसिकली एक एपिक वर्ड्स का फॉर्म होते हैं, ठीक है. एंड इट सेलिब्रेट्स हीरोइक डीड्स. तो जो हीरोज के काम होते हैं उनको सेलिब्रेशन के थ्रू पे बेसिस पे इन्हें लिखा जाता है, तो इनकी थीम इसलिए हीरोइक बन जाती है, ठीक है. हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड बाय चॉन्सर. तो पता होना चाहिए हमें सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज किसने किया था? चॉन्सर ने. और उसकी काफ़ी सारी कैंटरबरी टेल्स जो हैं वो हीरोइक कपलेट से ही रिलेटेड हैं. फाइन. हीरोइक कपलेट अच्छे से समझ आया. अगर आप चाहते हैं तो मैं एक काम करूंगी, मैं पार्ट 2 जो बनाऊंगी इसका, उसमें सारे ही स्टैंजा फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े. आपको मेरे चैनल पे ही उनके क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाएंगे. सो आफ्टर हीरोइक कपलेट वी आर स्टडिंग ब्लैंक वर्स विच इज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंजा, ठीक है. तो ये जो वर्ड्स है ना, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ हुए गए हैं इसको डिफाइन करने के लिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, और उनके मीनिंग्स जानने के पीछे तो बिल्कुल मत रहिएगा, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़. बस एक बार वो वर्ड्स अपने दिमाग में जैसे बिठा लीजिए और बिल्कुल टिप्स पे उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है. अब पहली बात हम जान लेते हैं कि वर्ड्स क्या होता है, ठीक है. ब्लैंक वर्ड्स उसके बाद में जानेंगे. वर्ड्स क्या होता है? Verse is the writing arranged in lines which has rhythm and which often rhyme at and. तो एक वर्ड्स होता है कुछ ग्रुप्स ऑफ लाइन्स
जो जिनमें रिद्म होता है और उनकी जो राइमिंग होती है वो एंडिंग वर्ड्स में अपनी राइम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लैंक वर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। जो ब्लैंक वर्ड्स होता है वो रेगुलर मेट्रिकल्स के थ्रू लिखा जाता है, ठीक है। और अनराइम्ड लाइंस होती हैं, वहाँ पे कोई राइमिंग नहीं हो रही होती है। और ये जो लाइंस होती हैं ऑलमोस्ट काफ़ी बार जो है ये अधिकतर हमारी आयम्बिक पेंटामीटर्स में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। और ये काफ़ी कॉमन और इन्फ्लुएंशियल फॉर्म रहा है हमेशा से इंग्लिश का। कब से ये जो है ब्लैंक वर्ड्स हमारा होता आ रहा है, यूज़ होता आ रहा है सिंस 16th सेंचुरी से जो पोएट्स हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में अपनी पोम्स लिख रहे हैं, ठीक है। और एस्टिमेट किया जाए अगर तो 3/4 मतलब जितनी भी टोटल इंग्लिश पोइट्रीज है उसका 3/4 जो है हमारा वो ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखी गई हैं पोम्स, ठीक है। और जो हमारे बेसिकली मोस्टली पोएट्स थे, कौन थे वो जो मोस्टली हमारा ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे? दे वर मार्लो एंड शेक्सपियर, ठीक है। याद रहेंगे ये दोनों, ठीक है। अभी समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज थी हीरोइक कपलेट की और ब्लैंक वर्ड्स की वो इतनी थी, ठीक है। मैं एक काम करूंगी जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारा हो गया हेनरी हावर्ड के बारे में रिलेटेड टू ब्लैंक वर्ड्स, ये सब मैं पार्ट 2 में पोस्ट कर दूंगी उन दोनों जो बाकी हमारे स्टैंजा फॉर्म्स बचे हैं उन दोनों के साथ में। तो आपको टोटल आपके पास क्या होगा, अभी आपके पास हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्ड्स के नोट्स हैं और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, आई होप। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो बाकी दोनों बचे हुए हैं स्टैंजा फॉर्म्स वो समझा दूंगी मैं और उनके नोट्स मिल जाएंगे। और उस वीडियो के एंड में आपको चारों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके they are most likely to come in your examinations, ठीक है। So I'll take your leave with this. I hope I was able to explain you things in a better way. So stay tuned till my next video. Till then, goodbye.